Uttarakhand is set to become the first state to implement a uniform civil code today, January 27. Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that the implementation of UCC will bring uniformity in all laws relating to personal civil matters that discriminate on the basis of caste, religion, gender and more, adding that all the necessary preparations have been completed to implement UCC, including approval of the rules of the Act and training of the concerned officials. Speaking to ANI on Saturday, CM Dhami stated that the Bharatiya Janata Party has fulfilled the promise they made in 2022. He referred to Article 44 of the Constitution, which mentions that the country shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Article 44 of the Constitution is part of the Directive Principles of State Policy. Part 4 of the Constitution of India, Article 36 to 51, contains the Directive Principles of State Policy. The Directive Principles of State Policy are guidelines for the Indian government aimed at ensuring socio-economic justice for the people and establishing India as a welfare state. The Uttarakhand government will implement the Uttarakhand Uniform Civil Code Act 2024 today, establishing a streamlined framework for the creation and cancellation of wills and supplementary documents known as codicils under testamentary succession. According to the state government, this act applies to the entire area of the state of Uttarakhand and is also effective on the residents of the state living outside Uttarakhand. The UCC applies to all residents of Uttarakhand except scheduled tribes and protected authority empowered persons and communities. Uttarakhand has become the first state in India to implement a uniform civil code aiming to simplify and standardize personal laws related to marriage, divorce, succession and inheritance. Under this, marriage can be solemnized only between those parties, none of whom has a living spouse. Both are mentally capable of giving legal permission. The man should have completed at least 21 years of age and the woman 18 years of age, and they should not be in the ambit of prohibited relationships. Marriage rituals can be performed in any form under religious customs or legal provisions, but it is mandatory to register marriages taking place after the implementation of the Act within 60 days. Marriages solemnized before March 26, 2010 or outside the state of Uttarakhand, where both the parties have been living together since then and fulfill all the legal eligibility criteria, can, although it is not mandatory, get registered within 6 months after coming into force of the Act, said an official statement by the government. Similarly, the work of acceptance and acknowledgement of marriage registration is also required to be completed promptly. After receiving the application, the sub-registrar has to make an appropriate decision within 15 days. देखिए, हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई, प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव ये हमारी सरकार, ये निकायों की सरकार है। निकायों की सरकार में जो भी लोग विजयी हुए हैं, जिनको जनता ने दायित्व सौंपा है, जिनको निर्वाचित किया है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सभी की जिम्मेदारी है
कि अब वो अपने अपने स्थानों पर निकायों को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं। आने वाले पर्यटकों के लिए जो है अच्छे शहर बनने चाहिए, अच्छे निकाय बनने चाहिए। ये हमारे सभी जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम करें। तमाम जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करें, सीवर की लाइनें अच्छी बनाएं। हर प्रकार से जो आज नवाचार हैं उस नवाचार को अपने अपने निकायों में अपनाएं। सरकार पूरी तरह से सबको एक तरह से सहयोग करेगी हर दृष्टि से, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारे लिए समेकित रूप से हमें विकास करना है। मैं इस पूरी प्रक्रिया में जो पार्टी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे उन सबको भी धन्यवाद करता हूं, उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में निर्वाचन आयोग को जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान को संपन्न कराया है। और इस मतदान प्रक्रिया में पूरा जो 1 माह से भी ज्यादा समय तक चली है, उस प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, सभी हमारे कार्मिक हैं, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सुरक्षा बलों के लोग, हमारी पुलिस के लोग, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से निकले हुए उनके मुंह से शब्द थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब मिलकर उत्तराखंड का ये तीसरा दशक हर दृष्टि से हमको पूरे देश में अग्रणी राज्य दिलाए, अग्रणी राज्य के रूप में पहचान दिलाए। हम सब लोग एक यात्रा के सब सहयात्री हैं, मिलकर हम सब लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता हमारे राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहुंचाने की होनी चाहिए, और उसमें सबका साथ रहेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को निकायों की सरकार चुनने के लिए मैं बहुत उनका नमन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। हम लोग अपने प्राणों प्राण से काम करेंगे देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए।